امام سمانا بابا سے بلند صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الملک الحق المبین قاسم الجبار المبین ولاک المدرکین رب الشہداء والصدیقین ثم الصلاة والسلام على رسول الله النبي الأمين سيدنا المؤيد بشيرنا المشدد نذيرنا المجدد المصطفى الأمجد محمودنا الأحمد أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وسلم. وآل أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين ذهب الله عنهم الرجس أهل البيت ويطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وسلم. سيما بقية الله في الأراضين لعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب دعوة النبوية والصولة الحيدرية ولا عصمة الفاطمية ولا حلم الحسنية والشجاعة الحسينية ولا عبادة السجادية والمعاثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقابة الناقوية والحيبة العسكرية القائم بلا حق. اللهم صل على محمد وآل محمد وسلم. سب ساتھ مل کے امام زمانہ کی سلامتی کی دعا پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتى تسكنهم ورزق الطوع وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقان الحميد وقوله الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وللہ ما فی السماوات وما فی الارض وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا. حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری عزیز مائیں اور بہنیں، سورہ نساء قرآن مجید کے چوتھے نمبر کا سورہ اور سورہ نساء کی آیت نمبر 131 کو 131 نمبر کی آیت کو میں نے سرنامہ کلام قرار دیا ہے اس عشر مجالس کے لیے. آج چونکہ تمہیدی مجلس ہے تو ہم انشاءاللہ گفتگو میں کوشش کریں گے کہ موضوع کو ہم شروع کر سکیں، لیکن موضوع کس چیز پر ہم اس 10 دنوں میں گفتگو کریں گے. سورہ نساء کی آیت نمبر 131 میں خداوند عالم یہ ارشاد فرما رہا ہے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. اللہ وہ ہے جس کے لیے کل کائنات، زمین اور آسمان کی تمام چیزیں اس پروردگار عالم کے لیے ہے. اور پھر آیت کے اگلے حصے میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ. ہم نے انسان کو وصیت کی ہے، ہم نے انسان کو تاکید کی ہے. یہ تاکید اور وصیت صرف قرآن میں نہیں ہے. خدا کہتا ہے اوتوا الکتاب. تم سے پہلے جتنی بھی کتابیں تھیں اس میں بھی ہم نے لوگوں کو یہ وصیت کی تھی، لوگوں کو یہ تاکید کی تھی. کس چیز کی خدا نے تاکید کی ہے؟
तो इरशाद रब्बुल इज़्ज़त हो रहा है कि अनित्तकुल्लाह, देखो अपने आप को गुनाहों से दूर रखना, तकवा इख्तियार करना। हमने तुमसे पहली किताबों में भी वसीयत की है कि वो लोग भी तकवा इख्तियार करें, अपने आप को गुनाहों से दूर रखें। चूँकि अगर कुरान मजीद ये कहता है कि अगर तुमने व इन तकफरू फ़इन्न लिल्लाह, यानी अगर तुमने कुफ्र किया, अगर तुमने तकवा इख्तियार नहीं किया, अगर तुमने कुफ्र इख्तियार किया, तो इसका नुकसान खुदा को कुछ नहीं है, इसका नुकसान खुद तुम्हारी ज़ात को होने वाला है। खुदा वो है जो कुल कायनात से बेनियाज है, आसमान ज़मीन सब कुछ कुल कायनात उस परवरदिगार आलम के लिए है। और आयत का आखिरी टुकड़ा व कान अल्लाह गनीयन हमीदा, खुदावंद आलम जो है वो बेनियाज है, मखलूक की उसे मोहताजी नहीं है, वो बेनियाज भी है और काबिल हम्दो सताइश भी है। हमारा मौजू जो है इस दिनों में मुसलसल हम किस चीज़ पे गुफ्तगू करेंगे? वसीयत खुदा कुरान में कहता है, हमने ताकीद की है कि तकवा इख्तियार करो। हमारी और आपकी मुसलसल गुफ्तगू रहेगी रसूल अल्लाह के वसीयत नामे के ऊपर। आप अगर नहजुल बलागा खोल के देखिए, सफ़ा नंबर 373 नहजुल बलागा का 337 नंबर का सफ़ा, कि जिसमें मौलाए कायनात का पूरा वसीयतनामा है। मौला ने जब इब्ने मुलजिम ने वार किया था, मौला ने कौन कौन सी वसीयत की थी, लेकिन ये जो वसीयतनामा है रसूल अल्लाह का है। आम तौर पे एक इंसान वसीयत क्यों करता है? मैं अपने बच्चों को वसीयत क्यों करती हूँ? इसलिए कि मुझे डर है कि मेरे बाद बच्चों में इख्तिलाफ़ हो जाएगा, फ़लाँ चीज़ फ़लाँ के लिए, फ़लाँ चीज़ फ़लाँ के लिए, देखो लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं। देखिए मुझे बताइए, वसीयत में हम कब ये कहते हैं? मुझे बताइए, आज तक मैंने किसी के वसीयतनामे में शायद ये बात नहीं पढ़ी है, अलावा कुछ लोगों को छोड़ के, जिसने वसीयतनामे में ये लिखा हो कि बेटा अव्वल वक्त नमाज़ पढ़ना, मेरे औलाद में वसीयत करता हूँ फ़र्श अज़ा बिछाना, मजलिसों में जाना, हिजाब कायम करना, सिले रहम करना मजलिसों में। देखिए मेरी अजीज़ माँ बहनें, हमारा वसीयतनामा, चूँकि हमारी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ दुनिया, हमारा एम और हदफ सिर्फ दुनिया के लिए, इसलिए हमारी वसीयतें भी दुनिया के बारे में होती है। इसको छोड़ के आप देखिए अल्लामा हिल्ली का वसीयतनामा, इंशाअल्लाह आगे मुझे वक्त मिलेगा तो मैं बताऊंगी अल्लामा हिल्ली का वसीयतनामा क्या वसीयत की है, बेहतरीन वसीयतनामा। आगाए मराशी नजफी का वसीयतनामा देखिए गुजराती में भी छप चुका है। आगाए मराशी नजफी अपने बच्चे को जो वसीयत करते सिर्फ अपने बेटे के लिए नहीं है, पूरी उम्मत के लिए। चूँकि आगाए मराशी नजफी जो वसीयत करते हैं ना, मजलिसों में शिरकत करने की वसीयत करते हैं, बेटे से कहते हैं कि बेटा नाफिला नमाज। आज माँ बाप डरते हैं बच्चों को ये कहते हुए कि अव्वल वक्त नमाज पढ़ना बेटा। वाजिब नमाजों की अदायगी के लिए हम वसीयत करने से डरते हैं कि बच्चे कहीं माँ बाप के ख़िलाफ़ न हो जाए, लेकिन आगाए मराशी नजफी कहते बेटा नाफिला नमाजों को कज़ा नहीं करना। आप सोचिए, इतने बड़े आलिम और वसीयतनामे में कहते हैं कि बेटा मैं वसीयत करता हूँ कि नमाज ज़ोहर और असर की नाफिला, सबसे डिफ़िकल्ट नाफिला कौन सी है? पूरे दिन में जो 51 रकात 11वें इमाम की जो हदीस है ना, मैं इंशाल्लाह बताऊंगी चेहलुम के दिन, कि 11वें इमाम से पूछा गया मोमिन की अलामत कौन सी? मौला ने कहा था 5 अलामत मोमिन की है, जिसमें से एक अलामत कौन सी है? पूरे दिन की 51 रकात नमाज, 51 रकात। हमारी 17 रकातों की क्या हालत है? हम इतने ज़ईफ़ हो गए, कमज़ोर हो गए हैं, ये 17 रकात भी बड़ी मुश्किल से पढ़ते हैं। तो जहाँ पे 51 रकात नमाज की बात आए तो नाफिले को काउंट करेंगे तो पूरे दिन की हो जाएगी 51 रकात, यानी वाजिब पूरे दिन की है 17 रकात। इसमें आप नमाज शब की 11 रकात को मिला दीजिए, फिर इसके साथ नमाज सुबह की नाफिला 2 रकात, ज़ोहर की नाफिला 8 रकात, असर की नाफिला 8 रकात, मगरिब की नाफिला 4 रकात, और ईशा की नाफिला अगर बैठ के पढ़े तो 2 रकात, खड़े होके पढ़े तो 1 रकात। लेकिन बहुत ताकीद की है कि बैठ के पढ़ना ज़्यादा ताकीद है। 2 रकात लेकिन शुमार होगा 1 रकात में, यानी अगर टोटल करेंगे आप 17 को, 11 को, और इसी के साथ साथ ज़ोहर की 8, असर की 8, सुबह की 2, मगरिब की 4, ईशा की 1, अगर इसको आप टोटल करेंगे तो इसकी 51 यानी 51 रकात होगी। सबसे डिफ़िकल्ट कौन सी है? ज़ोहर की नाफिला 8 रकात, असर की नाफिला 8 रकात, कितनी हुई? 16 रकात। आगाए मराशी नजफी कितनी अच्छी बात कहते। देखिए मैं आगाए मराशी नजफी के वसीयतनामे पर गुफ्तगू नहीं करूँगी, बहुत अच्छा वसीयतनामा है, ज़रूर पढ़िए आप, बहुत बेहतरीन वसीयतनामा।
हमें भी नसीहत मिलती है कैसे अपने बच्चों को वसीयत करना चाहिए, अपनी ज़िंदगी में हमें कैसे अमल करना चाहिए। आगाह मराशी नजफी कहते बेटा ज़ोहर और असर की नाफिला ये सोच के कि वक्त नहीं है, ज़्यादा रकात नमाज होती है तो हम क्या कहते हैं, टाइम नहीं हमारे पास, मोबाइल में घंटे घंटे तक चिपके रहते। यहाँ पे कभी हम नहीं कहते टाइम नहीं है, नमाज की बात आएगी तो क्या कहेंगे, वक्त नहीं है हमारे पास, कहाँ से टाइम निकाले। मेरी अजीज़ माँ बहने, आगाह मराशी नजफी कहते बेटा ये सोच के या ये बहाना दिखा के कि मेरे पास टाइम नहीं है, कभी भी ज़ोहर और असर की नाफिला को छोड़ना नहीं, तर्क नहीं करना। चूँकि मैंने खुद तजुर्बा किया है। आगाह मराशी नजफी कहते बेटे से बेटा मैंने खुद, यानी खुद ने भी पढ़ी है, बेटा मैंने खुद तजुर्बा किया है, इन दोनों नाफिला नमाज से तौफीकात में बहुत इजाफा होता है। कभी हम कहते हैं ना नमाज शब की तौफीक नहीं मिली, ज़ियारत पढ़नी थी, ज़ियारत आशूरा, तौफीक नहीं मिली, मजलिस में जाना था, तौफीक नहीं मिली। तौफीक कहाँ से मिलती है? इंसान जब वाजिबात को अदा करने में, नाफिला को अदा करने में जद्दोजहद कर रहा है, स्ट्रगल करता है। एक अच्छी डिश खानी है तो कितनी स्ट्रगल करेंगे, एक अच्छी रेसिपी बना के खानी है तो कितना कोशिश करेंगे, किचन में 2-2, 3-3 घंटे तक खड़े रहेंगे, पकाने के लिए इतनी कोशिश करेंगे। अगर अच्छी डिश नहीं बनी तो फिर से बनाएंगे, किसी से पूछ के कहेंगे कैसे बनाते हो, बताइए। नाफिला के लिए कभी हम स्ट्रगल करते, कभी जद्दोजहद करते, हमेशा यही पूछते हैं। देखिए आपके साथ मैं भी हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं कोई बहुत बड़ी आलिमा, मैं खुद तालिब इल्म हूँ, ये बीबी का करम है, मुझे ज़िक्र करने की तौफीक मिली है। हम सब कोशिश करें अमल करने की। मेरी अजीज़ माँ बहनें, देखिए आगाह मराशी नजफी की अगर ज़िंदगी को देखें, ज़्यादातर हम यही सवाल पूछते कि क्या नमाज शब 3 रकात पढ़े तो चलेगा। कभी कहते कि टाइम नहीं था, 3 पढ़ी तो बाद में दूसरी पढ़ ले तो चलता है, कभी पूछते? बाद में कहाँ हमें सोचने की पड़ी है। लेकिन आगाह मराशी नजफी कहते बेटा कभी ज़ोहर और असर की नाफिला तर्क न करना, ये बहाना करके कि मेरे पास टाइम नहीं है, इससे तौफीकात में बहुत इजाफा। आप खुद तजुर्बा करके देखिए अजीज़ों, खुद देखना, आप इतनी तौफीक मिलती है। आप अगर कभी सोच के सोए ना कि आज बहुत थक गई हूँ, नमाज शब के लिए नहीं उठना है, फिर भी आपकी आँख खुल जाएगी, तौफीक मिलेगी आपको। 8 से शुरू नहीं करे, 2-2 रकात से शुरू करे, 2 रकात ज़ोहर की पढ़े, फिर दूसरे दिन ज़्यादा टाइम में बरकत मिलेगी, तौफीकात बढ़ेगी। आप 4 ज़ोहर की नाफिला पढ़ेगी, फिर तीसरे दिन आप ज़ोहर की 6 रकात नाफिला पढ़िए, फिर आहिस्ता आहिस्ता असर की नाफिला शुरू कीजिए। आइए मेरी अजीज़ माँ बहन, ऐसा ना हो पहले दिन मैं आपको 51 रकात पे लेके आ जाऊँ तो कल पूरा मजमा मजलिस में नज़र न आए कि आप मजलिस में आने के लिए बड़ी मुश्किल से टाइम निकालते हैं। अरे हम 17 रकात नहीं अजीज़ों, यकीनन तजुर्बा है, आप देखना बहुत वक्त में बरकत होती है, इतना वक्त में बरकत भी मिलती है और इसी के साथ साथ तौफीकात में भी बहुत इजाफा होता है। वो काम जो शायद हम सोचते हैं ना नहीं कर पाएंगे, लेकिन अल्लाह की तरफ से मदद मिलती है। तौफीक के मानी यही है ना, अल्लाह की मदद शामिल हाल हो जाए बंदे के। और अगर खुदा की मदद ना हो तो दुनिया में इंसान कोई भी काम ना कर सके, ये भी खुदा की तौफीक है, मदद है। हम फर्श अज़ा पे आए। आइए मेरी अजीज़ माँ बहनें, वापस पलटिए, गुफ्तगू कहाँ से चली थी। खुदा कुरान में कहता है कि हम वसीयत करते हैं, किस चीज़ की? सिर्फ तुम्हें वसीयत नहीं की है, वसीयत की है तुमसे पहले उम्मत वालों को, तुमसे पहले अहले किताब थे ना, उनको भी हमने वसीयत की है। इत्तकुल्लाह, तकवा इख्तियार करना। अब जहाँ पे तकवे की बात आएगी, वसीयत की बात आएगी। वसीयत करना एक ऐसा अमल है कि जिसकी बहुत ज़्यादा ताकीद की गई है। हत्ता के इमाम ये इरशाद फरमाते हैं कि रात को सो तो तकिए के नीचे तुम्हारा वसीयतनामा होना चाहिए, इसलिए कि नींद जो है वो मौत की बहन है। पता नहीं तुम्हें नींद से उठ पाओगे या नहीं, कैसे पता चले कि सुबह को बेदार हो सकेगी या नहीं। इसलिए कहते हैं कि वसीयतनामा तुम्हारे तकिए के नीचे होना चाहिए, ताकि औलाद को भी बहाना, मौका न मिल जाए बहाना निकालने का कि माँ ने कुछ बताया ही नहीं था, कितने साल की कज़ा नमाज़ें थी, कितने कज़ा रोज़े थे, बाबा ने बताया ही नहीं, हमारे माँ बाप ने तो कुछ वसीयत ही नहीं की। मेरी अजीज़ माँ बहनें, हो सके ऐसी चीज़ों को भी शामिल कर ले कि बेटा मैं वसीयत करती हूँ अव्वल वक्त नमाज़ पढ़ना, मजलिसों में शिरकत करना, एटलीस्ट दिन में एक मजलिस ज़रूर सुनना, या तो किसी एक मर्जे को ज़रूर एक दिन में याद करना, किसी का वसीयतनामा पढ़ना। आइए मेरी अजीज़ माँ बहनें, वापस पलटिए। रसूल अल्लाह का वसीयतनामा जनाब अबू ज़र के नाम। रसूल अल्लाह एक दिन मस्जिद नबवी में बैठे थे और हमारा मौजू जो है वो रसूल का वसीयतनामा, किसके नाम? अबू ज़र के नाम, अबू ज़र गफ़ारी। जनाब अबू ज़र एक दिन मस्जिद नबवी में दाखिल हुए, देखा रसूल अल्लाह अकेले बैठे, फुर्सत, तन्हा, कोई नहीं है, और फुर्सत को गनीमत जाना, फ़ायदा उठा लिया।
जनाब अबू ज़र पास जाके बैठ गई, या रसूल अल्लाह मुझे नसीहत कीजिए, मुझे वसीयत कीजिए। अल्लाह के रसूल ने जनाब अबू ज़र को जो वसीयत की है यही लफ्ज़ था, या रसूल अल्लाह मुझे वसीयत कीजिए। अल्लाह के रसूल ने कहा अबू ज़र मैं तुम्हें वसीयत करता हूँ, सबसे पहली वसीयत अल्लाह का तकवा इख्तियार करना। अमीरुल मोमिनीन का अगर आप वसीयतनामा नहजुल बलागा में देखें ना तो पहली वसीयत तकवे के बारे में। अब तकवा यानी क्या? देखिए, तकवा यानी गुनाहों से अपने आप को दूर रखना। तकवा का रूट वर्ड है वक़य, ब्रेक लगाना, अपने आप को रोक देना, गुनाहों से दूर रखना। गुनाहों से दूरी का फ़ायदा क्या होगा? सब अमल हम यही सोच के करते हैं ना, फ़ायदा क्या मिलेगा, फ़ायदा पता चले तो जल्दी जल्दी करते हैं। अमीरुल मोमिनीन एक हदीस में तकवे के 12 फ़ायदे बयान करते हैं। मौला ये कहते हैं कि तकवे के 12 फ़ायदे हैं और सबसे बड़ा तकवे का फ़ायदा सूरह मायदा की आयत नंबर 27 नंबर की आयत। परवरदिगार आलम ये इरशाद फरमाता है इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन, खुदा सिर्फ़ और सिर्फ मुत्तक़ीन के अमल को कबूल करता है, सब के अमल को कबूल नहीं करता है। जिसके अंदर तकवा होता है ना, जो गुनाह से दूरी इख्तियार करता है। अल्लाह के रसूल कहते हैं अबू ज़र मैं तुम्हें वसीयत करता हूँ तकवा इख्तियार करना, क्योंकि दीन के तमाम कामों की बुनियाद तकवा के ऊपर है। एक आप बिल्डिंग बनाए और बुनियाद न बनाए, ऊपर मकान बहुत अच्छा बनाए, बगैर बुनियाद के मकान जो है वो गिर जाएगा। कोई वैल्यू नहीं है ऐसे घर की। एक तूफ़ान आएगा, ज़रा ज़्यादा हवा चलेगी, मकान गिर जाएगा, क्योंकि बुनियाद ठीक नहीं है। हर अमल की बुनियाद तकवा। हत्ता कि अल्लाह के रसूल कहते अबू ज़र मैं तुम्हें वसीयत करता हूँ अपने हर अमल में सबसे ज़्यादा एहतमाम तकवे का करना, हर अमल में गुनाह से दूरी इख्तियार करना। क्यों? इसलिए कि तकवे के साथ कोई भी अमल छोटा नहीं रहता है, कोई अमल कलील नहीं रहता है। तकवे के साथ अमल जो है वो बड़ा बन जाता है, कलील नहीं रहता, वो अमल बड़ा हो जाता है। अब देखिए, अगर तकवे के फ़ायदे को देखा जाए 12 फ़ायदे, लेकिन मैं 12 फ़ायदे बयान नहीं करूँगी, सिर्फ 6 फ़ायदे, और मजलिस को इंशाअल्लाह हम आगे बढ़ाएंगे। पहला फ़ायदा सूरह मायदा की आयत नंबर 27 इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन, खुदा सिर्फ़ और सिर्फ मुत्तक़ीन के अमल को कबूल करता है। अगर तुमने गुनाहों से दूरी इख्तियार नहीं की तो अमल कबूल नहीं है। नमाज़ों के साथ साथ गाना भी घर में चल रहा है तो ये नमाज़ें कबूल नहीं है। जहाँ पे हम फ़र्श अज़ा पे शिरकत भी करते हैं, मजलिसों में शिरकत भी करते हैं, बीबी ज़ैनब की बेहिजाबी पे रोते भी हैं, लेकिन साथ साथ खुद भी बेहिजाबी करते हैं, तो अजीज़ों ऐसा अमल काबिल कबूल नहीं है। गिरिया तो करते हैं, लेकिन उस बीबी की चादर पे गिरिया करें लेकिन खुद बेहिजाब रहते हैं। मेरी अजीज़ माए बहनें, देखिए अमल कबूल करने वाला खुदा है। मैं तो सिर्फ आपको यही बताऊंगी कुरान क्या कहता है। दूसरा फ़ायदा सूरह हुजरात आयत नंबर 13, परवरदिगार आलम ये इरशाद फरमाता है इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, अल्लाह के नज़दीक जो सबसे ज़्यादा बाइज़्ज़त है ना वो मुत्तकी है। अल्लाह के नज़दीक उसी की इज़्ज़त है। माल दौलत, मेरा ख़ानदान, मेरी फैमिली, मेरी दौलत, मेरा पैसा, मेरा घर, खुदा की नज़रों में कोई बाइज़्ज़त नहीं है। इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, अल्लाह के नज़दीक जितने तुम बात तकवा होगे ना, जितने गुनाहों से दूर रहोगे, उतना खुदा तुम्हें बाइज़्ज़त बनाएगा, उतना खुदा के नज़दीक तुम्हारी इज़्ज़त होगी। तीसरा फ़ायदा सूरह तलाक़ की दूसरी और तीसरी आयत कितनी मशहूर है। हर मुश्किल का इलाज इस आयत में, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब वमन यतवक्कल अलल्लाहि फ़हुव हस्बुहु इन्नल्लाह बालिग़ु अम्रिही क़द जअलल्लाहु लिकुल्लि शैइन क़दरा। क्या कहता है खुदा कुरान में? वमन यत्तक़िल्लाह, अगर तकवा इख्तियार करोगे, वह यजअल लहू मख़रजा, मुश्किल से निकलने के रास्ते खुदा फराहम करेगा। तुम्हें नहीं सोचना है तुम्हें क्या करना है। मुश्किल आ गई ना, तुम तकवा इख्तियार करो, तुम गुनाहों से दूरी इख्तियार करो, ऐसा ना हो तुम गुनाहों में मुब्तला हो जाओ। इसीलिए 5वें इमाम यही कहते हैं ना, मोमिन वो है जो ज़्यादा खुश होके गुनाह नहीं करता, ज़्यादा गमगीन होके भी गुनाह नहीं करता। ये दो मौके जो है ना बड़े सेंसिटिव होते हैं। इंसान ज़्यादातर गुनाहों में मुब्तला हो जाता है। जब बहुत ज़्यादा खुश होता है ना तो गुनाह के रास्ते पर चला जाता है, जब बहुत गमगीन होता है तो गलत रास्ते पर चला जाता है, खुदा पर झूठ और बहतान बांधने लगता है, ऐसे रास्ते पर चला जाता है जहाँ पे उसको नहीं जाना चाहिए। किसी ने जादू करा दिया, किसी ने टोना करा दिया, ये हो गया वो हो गया। दर अहले बैत को छोड़ के किसके दर पे जाएंगे अजीज़ों? देखिए खुदा कुरान में कहता है वमन यत्तक़िल्लाह, तू तकवा इख्तियार कर, बस
खुदा का काम है वह यजअल लहु मखरजा, तुझे मुश्किल से निकालेगा। अब आइए सूरह आल इमरान आयत नंबर 120। खुदा कहता है व इन तस्बिरु व तत्तकू ला यज़ुर्रकुम कैदहुम शैअन, यानी अगर तुम सब्र करो और तकवा इख्तियार करो तो दुश्मनों की साजिशें तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। सबकी यही शिकायत है ना, दुश्मन बहुत ज़्यादा है आपा, ये हसद करने वाले बहुत ज़्यादा है, इंसान को आगे बढ़ने नहीं देता, उसे रोक देते, टांग खींच के गिराने की कोशिश करते। खुदा कुरान में कहते तू दो चीज़ों को लेके चल, तुझे कुछ नहीं देखना है। दुश्मन जो भी करे ना उसके प्रोपेगंडे को खुदा नाकाम कर देगा, लेकिन तेरे पास दो चीज़ें होनी चाहिए। सूरह आल इमरान 120 नंबर की आयत, व इन तस्बिरु व तत्तकू, तू सब्र कर, अपने मामलात को खुदा पे छोड़ दे। व इन तत्तकू, तू तकवा इख्तियार कर, तू गुनाहों से दूर रहे, ऐसा ना हो कि तू गुनाहों में मुब्तला हो जा। और फिर खुदा कहता है ला यज़ुर्रुकुम कैदहुम शैअन, खुदा कहता है उनकी साजिशें तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी, उन्हें प्लान बनाने दो, उन्हें मक्र करने दो। मकरू व मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन, वो अपना मक्र करते, खुदा अपना मक्र करता है। वल्लाहु खैरुल माकिरीन, खुदा से बढ़ के है कोई जो प्लानिंग करे? खुदा बेहतरीन प्लान करने वाला है, लेकिन दो चीज़ें हमारे अंदर होनी चाहिए, वह इन तस्बिरु व तत्तकू। आइए पांचवा फ़ायदा तकवे का। देखिए तमाम फ़ायदे बयान नहीं करूँगी किसी और मौके पर, आज मुझे सिर्फ वसीयतनामा जो रिसालत माप का जनाब अबू ज़र के नाम, उसकी तरफ आगे बढ़ना है। लेकिन जब तकवे की बात आई है तो बहुत अहम चीज़ है। सूरह आल इमरान 186 नंबर की आयत, 186 नंबर की आयत, व इन तस्बिरु व तत्तकू, अगर तुम सब्र करो, तकवा इख्तियार करो, फ़इन्न ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर, खुदा हमारे और आपकी तरह से नहीं है कि सबकी चापलूसी करे, सबकी तारीफ़ें करे। हम और आप देखिए कभी ऐसे हो जाते हैं ना, गलत काम करने वाले की भी तारीफ़ करने लगते हैं, जबकि हमें पता है इसने गलत काम किया है। रोकना तो दूर की चीज़ है, देखिए अगर रोक नहीं सकते तो एटलीस्ट चुप रहे, एटलीस्ट चुप रहे, खामोशी इख्तियार करे, अपने अमल से नाराज़गी दिखाए। अगर किसी ने गलत काम किया है, जुल्म किया किसी के ऊपर, लेकिन हम क्या करते, उसको अच्छा दिखाने के लिए उसकी भी तारीफ़ करते। लेकिन खुदा ऐसा नहीं है, खुदा सबकी तारीफ़ नहीं करता है, उसी की तारीफ़ करता है जो काबिल सताइश है। और खुदा दो लोगों की तारीफ़ करता है। सूरह आल इमरान आयत नंबर 186, व इन तस्बिरु व तत्तकू, अगर तुम सब्र करो और तकवा इख्तियार करो, फ़इन्न ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर, ये बहुत बड़ी हिम्मत का काम है, सब नहीं कर सकते। ऐसे मरहले में सब्र छूट जाता है, बड़ा मुश्किल है ना सब्र करना और गुनाहों से दूर रहना, तकवा इख्तियार करना। और देखिए तकवा अमल की कबूलियत का दारो मदार तकवे के ऊपर है, इसलिए कि तमाम कामों की बुनियाद तकवे के ऊपर है। हज़रत मूसा कौन है? कलीमुल्लाह नबी है, ऐसे नबी जिसे अल्लाह से डायरेक्ट कलाम करने का मौका मिला। इतना बुलंद मर्तबा हज़रत मूसा का, कोहे तूर पे जाते खुदा से डायरेक्ट कलाम करते। एक दिन बयाबान से गुजर रहे थे ना, तो हज़रत मूसा कोई सामान लेके नहीं चले थे, कोई सफ़र का सामान साथ में नहीं था। जैसे ही बहुत आगे चले गए तो पता चला शिद्दत की भूख और प्यास। अब क्या करें, जंगल और बयाबान में कोई नज़र आए तो उससे मांगे। अचानक एक जवान पे नज़र पड़ी, एक शख्स पे नज़र पड़ी। हज़रत मूसा उसके करीब गए, कहा भाई मुझे शिद्दत की प्यास महसूस हो रही, बताने में मूसा नबी हूँ। कहा भाई मुझे शिद्दत की प्यास महसूस हो रही है, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या तेरे पास कोई चीज़ है जो मुझे खाना खिला सके, मुझे पानी पिला सके? वो शख्स कहता है कि कोई बात नहीं, रुक जाइए, अभी मैं आपको सैराब भी करूँगा और खाना भी खिलाऊँगा। उसके पास एक लकड़ी थी, एक असा था, उसे ज़मीन पे मारा। जैसे ही असा को ज़मीन पे मारा ना, साफ़ और शफ़ाफ पानी की नहर बहने लगी। हज़रत मूसा को सैराब भी किया, हज़रत मूसा को खाना भी खिलाया। हज़रत मूसा तो पानी पी चुके, खाना खा चुके, लेकिन एक सवाल दिल में है, एक आम इंसान, इतना बड़ा मर्तबा, एक आम इंसान को खुदा ने इतना बुलंद मर्तबा कैसे दिया? कोहे तूर पे गए ना तो खुदा से सवाल पूछा, माबूद इस शख्स की कौन सी चीज़ तुझे सबसे ज़्यादा पसंद आई? तूने एक आम इंसान को ऐसा मोजिज़ा दिया, ऐसी करामत दी कि अपनी लकड़ी को ज़मीन पे मारता है तो पानी का चश्मा जारी हो जाता है, खाना हाजिर हो जाता है, मुझे खाना भी खिलाया, पानी भी पिलाया। जवाब परवरदिगार आया कि मूसा उस बंदे की मुझे 5 चीज़ें बहुत अच्छी लगती है, वो जो मेरा बंदा है ना उसमें 5 चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैंने उसे ये करामत इनायत की।
اس لیے میں نے یہ چیز عنایت کی، بلند مرتبہ۔ تقوی کے ذریعے سے خدا صرف آخرت میں نہیں، دنیا میں بھی بلند درجے دیتا ہے۔ سب سے پہلی چیز، اے موسیٰ، میں نے کبھی اس بندے کے دل کو اپنی یاد سے خالی نہیں دیکھا، ہمیشہ میری یاد میں مشغول رہتا ہے۔ کبھی کوئی موقع ایسا نہیں ہے جب اس کے دل میں میری یاد نہ ہو۔ میں نے اس کے دل کو کبھی اپنی یاد سے خالی نہیں دیکھا۔ دوسرا، حضرت موسیٰ کہتے کہ پروردگارہ دوسری چیز کون سی؟ کہاں معبود، پروردگار کہتا ہے موسیٰ دوسری چیز جو اس بندے میں مجھے پسند آئی وہ یہ ہے کہ اس کے دل میں کبھی میں نے حسد کو نہیں دیکھا۔ حسد ایمان کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ سوکھی لکڑی کو۔ زیادہ تر گناہ انسان حسد کی وجہ سے کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ سے خدا کہتا ہے موسیٰ مجھے دوسری چیز جو پسند آئی نا، یہی نہیں کہ میری یاد سے اس کا دل کبھی خالی نہیں رہتا، بلکہ یہ کہ اس کے دل میں کبھی میں نے حسد نہیں دیکھا۔ تیسری چیز، میں نے ہمیشہ اس کے دل میں میرا خوف دیکھا ہے، وہ مجھ سے ڈرتا رہتا ہے، ایسا نہ ہو میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے۔ لوگوں کو راضی کرنے کی کتنی کوشش کرتے، کبھی یہ سوچتے کہ میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ اے موسیٰ کبھی میں نے اس کے دل میں یہ نہیں دیکھا کہ وہ میری وجہ سے وہ خوف زدہ نہ ہو، میری وجہ سے اس کا دل خوف زدہ رہتا ہے، خائف رہتا ہے، میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ اور چوتھی چیز، اے موسیٰ وہ رزق کی زیادہ فکر نہیں کرتا، یعنی دنیا کی زیادہ فکر نہیں کرتا ہے، وہ رزق کے بارے میں زیادہ فکر نہیں کرتا ہے۔ اور پانچویں چیز، اے موسیٰ میں نے جو اس کے دل میں دیکھا ہے کہ یہ گناہوں پر اصرار نہیں کرتا ہے۔ تقویٰ اسی چیز کا نام ہے نا، گناہوں سے دور رہنا۔ گناہ ہو جاتے کب؟ غلطی سے، لیکن بعد میں انسان اگر پلٹ جائے۔ دیکھیں 11ویں امام سے جو سوال پوچھا گیا نا، جبکہ یقیناً دیکھیں وقت میں گنجائش نہیں ہے، تقریباً وقت میرا ختم ہونے کے قریب، لیکن آخری حدیث کہ 11ویں امام سے سوال پوچھا گیا تھا کہ مولا بتائیے محشر کے میدان میں لوگ کس حال میں ہوگے؟ 11ویں امام نے کہا سب پچھتائیں گے، جسے جنت کا پروانہ ملے گا نا وہ بھی پچھتائے گا۔ کیوں؟ اگر زیادہ نیکیاں کرتے تو اور بلند درجے مل جاتے۔ دنیا میں یہی کہتے ہیں نا، اگر اس سے زیادہ پیسے ہوتے تو اچھا گھر خریدتے، اگر اس سے زیادہ پیسے ہوتے تو اچھا فرنیچر بناتے، اگر اس سے زیادہ مال ہوتا تو یہ کر لیتے۔ دیکھیں دنیا کے لیے قیامت کے دن 11ویں امام کہتے ہیں سب پچھتائیں گے۔ مولا سے پوچھا کیا مولا کیا کوئی زیادہ پچھتائے گا؟ امام سے پہلے پوچھا مولا کیا کوئی ایسا ہوگا جو نہ پچھتائے؟ امام کہتے نہیں، جہنم جانے والا بھی پچھتائے گا، جنت میں جانے والا بھی پچھتائے گا۔ جہنم میں جانے والا پچھتائے گا کہ کاش صحیح راستے پر چلتا تو جنت کو حاصل کر لیتا۔ جنت میں جانے والا پچھتائے گا کہ کاش زیادہ نیکی کرتا تو اور بلند درجے مل جاتے، اور زیادہ بلند مقام مل جاتا۔ مولا سب سے زیادہ کون پچھتائے گا؟ امام کہتے دو کیٹیگری کے لوگ، دو گروہ سب سے زیادہ پچھتائے گے محشر کے دن۔ اور وہ کون سے لوگ ہوں گے؟ پہلا گروہ جن کے پاس علم آ چکا لیکن عمل کی منزل پہ نہیں آئے۔ علم تو آ چکا، نہیں پتا تھا گناہ ہے، کرتے تھے کوئی بات نہیں، اب پتہ چلا اب تو چھوڑنا چاہیے نا۔ میری عزیز مائیں بہنیں، پتہ چلا لیکن ہم عمل کی منزل پہ بعد میں عمل کریں گے، کل سے کریں گے، کل سے کریں گے، بعد میں کریں گے۔ دیکھیے زندگی میں کل کبھی نہیں آئے گی۔ اگر جو بھی عمل کرنا ہے انسان آخرت کے لیے آج سے ہی عمل کرے۔ مولا کہتے 11ویں امام کہتے دو لوگ سب سے زیادہ پچھتائیں گے، علم ہوگا لیکن عمل نہ کرنے والا، اور دوسرا گروہ جن کے پاس مال ہوگا لیکن اس مال سے آخرت کو نہ خریدا۔ دنیا اچھا مکان بنایا، ایف ڈی چھوڑ کے گئے، اچھے گہنے بچوں کے لیے چھوڑ کے گئے، سب کچھ چھوڑ کے گئے، آخرت کے لیے کچھ نہیں کیا۔ قیامت کے دن پچھتائے گا، میں تو دنیا کے لیے سب کچھ چھوڑ کے گیا، آخرت کی ایف ڈی نہیں کی، آخرت کے لیے کچھ نہیں کیا۔ سب سے زیادہ پچھتائے گا۔ کبھی ایسا ہوگا یہ جو چیز چھوڑ کے جائے گا نا اس کی اولاد اس مال سے آخرت کمائے گی۔ اگر یہ چاہتا تو خود آخرت کو کما لیتا، لیکن اس نے بچوں کی فکر کی۔ بچے، اولاد، نہ حلال دیکھا، نہ حرام دیکھا، نہ دن دیکھا، نہ رات دیکھی، سب کچھ اپنے بچوں کے لیے کیا۔ لیکن پتہ چلا کہ جب وہاں پہ پہنچے کاش اس مال سے آخرت کو کما لیا ہوتا۔ میری عزیز مائیں بہنیں، جہاں پہ زندگی میں اگر کاش نہ آئے، انسان کی زندگی میں اگر کاش نہ آئے تو موقع کو غنیمت جانے، ابھی سے انسان عمل کی منزل پہ آ جائے۔ اور سب سے بہترین عمل زندگی میں جتنے بھی عمل کرتے ہیں نا، سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ مصائب سید الشہداء میں گریہ کرنا۔
8वें इमाम रैयान बिन शबीब से जो कहते हैं ना, एक दिन मैं पूरी रिवायत बयान करूँगी, बहुत अच्छी रिवायत है। मौला ने क़यामत के दिन अगर हमारे साथ रहना चाहते हो तो क्या करना चाहिए, पूरी रिवायत बयान की है। लेकिन सबसे बेहतरीन जो इमाम ने उस हदीस में कहा ना, यब्न शबीब, ए शबीब के बेटे, जब तुम्हारा दिल बोझल हो जाए, जब तुम रोना चाहो, कभी ऐसा होता है, अक्सर ऐसा होता है, दिल बोझल हो जाता है, बड़ा रोने को दिल चाहता है, दुनिया के मसाइब जब इंसान को घेर लेते हैं, इमाम कहते हैं यब्न शबीब, ए शबीब के बेटे, जब तुम्हारा दिल बोझल हो जाए ना, रोना चाहो तो मेरे जद हुसैन पे रोना, इसलिए कि उन्हें जानवर की तरह ज़बह किया गया। बहुत तूलानी हदीस है। लेकिन फिर मेरे 8वें इमाम कहते हैं यब्न शबीब, ए रैयान बिन शबीब, तुम जानते हो मेरे जद हुसैन पे रोने के फ़ायदे कितने हैं? एक आंसू का कतरा आँख से निकले मच्छर के पर के बराबर खुदा तमाम गुनाहों को बख्श देता है। कैसे गुनाह? चाहे वो रेत के ज़र्रों के बराबर हो, चाहे वो समंदर के कतरों के बराबर हो। अपने दिल पे हाथ रख के बताना, मसाइब की सिमत तो मैं बाद में जाऊंगी, अपने दिल पे हाथ रख के बताना, अगर वो माँ दूध और खून में, तरबियत में मौला की मोहब्बत न देती, कहाँ ये दर होता, कहाँ हम जैसे गुनहगार होते। ए माँ, आज अगर तू बरज़ख का सफ़र तय कर रही है, हम तेरे इस अजीम एहसान को कभी नहीं भूल सकते। अगर तू हुसैनी न बनाती, अगर तू अली वाला हमें न बनाती, कहाँ ये पाक और पाकीज़ा दर होता, कहाँ हम जैसे गुनहगार होते। यही तो माँ थी ना जिसने बचपने में उंगली पकड़ के फर्श अज़ा पे आके लाके हमें बिठाया था, मसाइब में रोना सिखाया था, और कहा था मसाइब में रोना तो बावाज़े बुलंद गिरिया करना। ये एक एक चलती हुई सांस है ना, उस माँ की मरहून मिन्नत है। अगर ये मौला की मोहब्बत दूध और खून में न देती, मेरी अजीज़ माँ बहनें, इसने कब हमें लोरी में या अली की सदाएं सुना के अली वाला बना दिया, हमें और आपको पता ही नहीं चला। कब इसने फर्श अज़ा पे ला के बिठा के हमें और आपको हुसैनी बना दिया, हमें और आपको पता ही नहीं चला। आइए अपने ज़िंदा वालिदैन, जिन जिन के वालिदैन हयात है, उन्हें दुआए खैर के साथ याद करें माबूद। जिनके वालिदैन हयात है उन्हें सेहत के साथ लंबी ज़िंदगी नसीब फरमा। जिनके वालिदैन इस दुनिया से रुखसत हो चुके, माबूद उनकी मग़फ़िरत फरमा। रोने वाली माएँ बहनें, इमाम कहते जब तुम्हारे दिल बोझल हो जाए, रोना चाहो तो मेरे जद हुसैन पे गिरिया करना। उन्हें बड़ी बेदर्दी के साथ जानवर की तरह से ज़बह कर दिया गया। रोने वाली माएँ बहनें, शेख जाफ़र शूस्तरी अपनी किताब ख़साइस हुसैनिया सफ़ा नंबर 95 पे लिखते हैं कि करबला में 6 मुश्किल मौके थे। हुसैन जैसा कोई साबिर आपको दुनिया में नहीं मिलेगा, नफ्स मुतमइन्ना, लेकिन 6 मौके ऐसे मुश्किल थे ना कि हुसैन रो पड़े और मौला के गिरिए की आवाज़ बुलंद हो गई। शेख जाफ़र शूस्तरी लिखते हैं वो कौन कौन से मौके। कहते सबसे पहला मौका तो जब ज़हरा का लाल रुखसत करके खैमे से बाहर निकला ना, मेरा मौला जब बीबियों को रुखसत कर चुका और खैमे से बाहर निकला, तो शेख जाफ़र शूस्तरी कहते हैं एक 4 साला बच्ची थी ना, बाबा के दामन को पकड़ लिया और कहती आहिस्ता आहिस्ता, बाबा जाने में इतनी जल्दी न करो, क्योंकि मुझे पता है कि ज़िंदा वापस बाबा नहीं आएंगे। फिर बाबा के पैरों को चूमने लगी, हाथों को चूमने लगी, और शेख जाफ़र शूस्तरी ने जुमला लिखा, अगर आप बर्दाश्त कर सको तो। बच्ची ने कहा बाबा आखिरी मर्तबा रुखसार को सीने से लगा लेने दीजिए एक बार, ताकि जीने की ज़िंदगी में जितनी ज़िंदगी आपके बाद जीने उसमें मुझे सहारा मिल जाए। मेरी याद के लिए एक बार मेरे रुखसार को अपनी छाती से लगा लेने दीजिए। मौला ने जब बच्ची की बेकरारी को देखा ना, तो ज़मीन पे बैठ गए और बच्ची को गोद में लिया। बच्ची भी रो रही थी और मौला भी रो रहे थे। अपने हाथों से मौला ने बच्ची की आंखों से आंसुओं को साफ किया। लेकिन ये इतना मुश्किल मौका था, जितनी भी बेटियां बैठी ना, मुझे दिल पे हाथ रख के बताना,
जिस बेटी को यकीन हो कि मेरा बाबा जिंदा वापस नहीं आएगा, किस दिल से अपने बाप को रुखसत करती है? सकीना को पता है कि सुबह से जो मख्तल में जाता है ना, वो जिंदा वापस नहीं आता है। बाबा ज़रा आहिस्ता आहिस्ता, बाबा एक बार सीने पे मेरे रुखसार को रख लेने दीजिए। और मौला ने बच्ची को अपनी गोद में बिठाया और बिठाने के बाद कहा, सकीना देख बाबा मख्तल में जा रहे हैं ना, मुझे जिंदा वापस नहीं आना है। ए मेरे लाल सकीना, यतीमी किसे कहते हैं? जिसका बाप मर जाए वो बच्चा यतीम है, लेकिन हाय सकीना की यतीमी तो और बच्चों से मुख्तलिफ है। इसलिए कि यतीमी के बाद सर पे मोहब्बत से हाथ फेरा जाता है, यतीमी के बाद रोने पर पाबंदी नहीं होती है। हाय यतीमी के बाद बच्ची को तमाचे नहीं मारे जाते, लेकिन ये हुसैन की मजलूम बच्ची की मुकद्दर है कि जिसको बाबा की शहादत के बाद तमाचे मारे गए। रोने वाली माए बहने, बेटी जो है ना वो बाप के जिगर का टुकड़ा होती है। बाप को अपनी बेटी से बड़ी मोहब्बत होती है। हुसैन की दो बेटियां, एक बेटी सकीना जिसे मौला करबला में साथ लेके आए हैं और माल सिब्तैन में लिखा है, मोहम्मद इश्तिहारी लिखते हैं। जब मौला ने कहा ना सकीना बेटी खुदा हाफिज, तो बच्ची ने आखिरी सवाल किया था बाबा से। कौन सा सवाल था? बाबा ऐसा नहीं हो सकता आप हमें मदीना पहुंचा दें? मौला ने कहा था सकीना बेटी मदीना पहुंचाना मुमकिन नहीं है, चूँकि असर का वक्त करीब आ चुका है। मक्तल की किताब में तो यही लिखा है, लेकिन मेरा दिल कहता है जब बच्ची ने कहा होगा ना बाबा क्या हमें मदीना नहीं पहुंचा सकते, मेरा दिल कहता है हुसैन के तस्वुर में शाम का जिंदान आया होगा। सकीना मदीने सब जाएंगे, तेरी किस्मत में रिहाई नहीं है, तुझे तो शाम का जिंदान बसाना है। हाय हुसैन की लाडली बेटी सकीना, जितने भी कैदी कैद खाने में थे ना, सबसे ज्यादा जिसके दिल में मदीना जाने की तमन्ना थी ना वो सकीना थी। परिंदों को उड़ के देखती तो पूछती भैया ये परिंदे कहाँ जा रहे हैं? सज्जाद कहते बहन अपने घरों की तरफ जा रहे हैं। बच्ची तड़प के पूछती भैया हम कब मदीने जाएंगे? रोने वाली माए बहने अजरुकुमुल्ला, इसी तरह बाबा से बुलंद गिरिया करे, खुदा किसी गम में न रुलाए। मसाइब में रोना तो मेरा छठा इमाम कहता है अबू बसीर कभी घुट घुट के नहीं रोना, बाबा से बुलंद गिरिया करना, ऐसे रोना जैसे कोई बूढ़ी माँ जवान बेटे की मैयत पे रोती। खुदा किसी गम में न रुलाए। रोने वाली माए बहने, एक बेटी सकीना कहती रही बाबा मदीने नहीं पहुंचा सकते। मौला कहते नहीं बेटी मुमकिन नहीं है मदीना पहुंचाना। एक बेटी सुगरा जब काफिला 28 रजब को चला ना, कहती है बाबा सफ़र में कोई तकलीफ़ नहीं दूंगी, पैदल चलूँगी, हमारी नहीं मांगूंगी, बाबा मुझे भी साथ लेके चलिए, बाबा प्यासों को पानी पिलाऊंगी। मशीयत परवरदिगार थी हुसैन सुगरा को साथ न ले जा सके और बहन से कहा था बहन खबरदार कोई सुगरा की सिफारिश न करे। एक सवाल पूछो आपसे, जब आप खुदा करे जियारत के जाए तो बच्चों को साथ लेके जाए। खुदा न करे कभी बच्चों को वतन में छोड़ के आप अकेले जियारत के लिए चले जाए। मुझे और आपको यकीन है मेरे बच्चे मौला की जमानत में है, लेकिन एक माँ का दिल है। सफर में जहाँ जहाँ बच्चे देखते हैं हमें हमारी औलाद याद आती है। हाय मेरे बच्चे वतन में मुझे याद करते होंगे, क्या हुसैन को सुगरा की याद ना आई होगी? मौला ने कितने मौकों पर सुगरा को याद किया और सबसे अहम मौका तो वो था जब अरबई करने के लिए हुसैन की बहन ज़ैनब जब चहलुम करने के लिए करबला पहुंची है। अरबई के दिन करीब आ रहे हैं ना, मौला दिल गमगीन हो रहा है, जो जाके आए दिल तड़प रहे।
गए। बड़ा दिल चाहता था इस साल मौला अरबई करने बुलाएंगे, लेकिन दुआएं करे खुदा जल्द से जल्द अरबई करबला में करना नसीब करे। रोने वाली माए बहने, ज़ैनब कुबरा का दिल नहीं चाहता भाई की कब्र से जुदा हो, और भाई की कब्र से लिपट के कहती है भैया तेरे बगैर मदीने न जाऊंगी। भरा हुआ घर लेके आई थी, ये उजड़ा हुआ काफिला। भैया मदीने वाले पूछेंगे ज़ैनब अकबर क्या हुए, कासिम क्या हुए, औनो मोहम्मद क्या हुए, हुसैन क्या हुए, मैं क्या क्या जवाब दूंगी। भैया तेरे बगैर मदीने न जाऊंगी। और मेरा चौथा इमाम कहता है कब्र में एक लर्जिश पैदा हुई, बाबा की आवाज़ आई बहन ज़ैनब जाने को न कहता, रुकने से मना न करता, लेकिन मेरी सुगरा तेरे इंतज़ार में बैठी है। बहन मदीने जाना, सुगरा को सीने से लगा कर प्यार करना, कहना सुगरा तेरा बाबा तुझे भूला नहीं था। रोने वाली माए बहने, यही सुगरा काफिला चलने लगा। जनाबे ज़ैनब से कहा बहन कोई सुगरा की सिफारिश मुझसे न करे। और जनाबे सुगरा ने देखा सब बीबियाँ हुजरे की चाबी देके खामोशी के साथ चली जाती है। जब आखिर में ज़ैनब कुबरा आई ना, सुगरा ने दामन पकड़ लिया, फूफी अम्मा बाबा से कहिए मुझे भी लेके जाए। और जैसे ही ज़ैनब ने सुना, सीने से लगाया सुगरा काफिला वापस आ जाएगा। सुगरा फिक्र न करो बेटी, ज्यादा न रो, अगर रुकना हुआ तो अकबर को लेने के लिए भेजेंगे। सुगरा कहती है फूफी अम्मा मुझे पता है काफिला वापस आएगा, मेरा बाबा वापस नहीं आएगा। जितनी बेटियां बेटी है, किस दिल से सुगरा ने बाबा को खुदा हाफिज कहा होगा। फूफी अम्मा मेरा बाबा वापस नहीं आएगा। कैसे पता चला? आधी रात को नूर की हमारी आसमान से जमीन पे उतरी और मेरी दादी ज़हरा हाय हुसैन, हाय परदेसी हुसैन, हाय मेरा गरीब हुसैन कह के रो रही थी। फूफी अम्मा मेरा बाबा पलट के वापस नहीं आएगा। इलाही बेहक के ज़हरा व अबीहा व बालिहा व बनीहा व सिर्रिल मुस्तौदअ फ़ीहा बेअददे मा अहात बिही इल्मु। परवरदिगारा मोहम्मद और आले मोहम्मद का तुझे वास्ता, करबला के तमाम मज़ालिम का इंतकाम लेने, खुसूसन टूटी हुई जन्नतुल बकी को मकबरे में तब्दील करने, अपनी आखिरी हुज्जत के ज़हूर में ताजील फरमा। माबूद तुझे वास्ता मौला हुसैन की लाडली चहीती सीने पर सोने वाली उस बच्ची की गुर्बत का। अजीज़ों में क्या बताऊं, सिन छोटा सा सकीना का, लेकिन मसाइब बड़ों से भी ज़्यादा, इसलिए कि सब बीबियों को ऊँट की पुश्त पे हाथ पसे गर्दन बांध के सवार किया गया। हर बच्चे को माँ की गोद में, सकीना को अकेले ऊँट पे। और ज़ैनब कुबरा ने पूछा था शिम्र इस बच्ची की ख़ता क्या है, अकेले ऊँट पे क्यों बिठा रहा है? और शिम्र ने कहा था ज़ैनब इससे हुसैन को बड़ी मोहब्बत थी, जितनी सकीना तड़पेगी उतना सरे हुसैन तड़पेगा। और कैसे तड़पाया है सरे हुसैन को अजीज़ों, जहाँ जहाँ बच्ची गिरती थी तो सरे हुसैन रुक जाता था। मेरी सीने पे सोने वाली कहीं गिर गई है। आ गए तवक्कुली रिक्ते कि 2 मरतबा बच्ची ऊँट की पुश्त से गिरी है। पहली बार जब ऊँट की पुश्त से गिरी है ना, सरे हुसैन रुक गया। मेरे चौथे इमाम ने कहा बाबा सर आगे क्यों नहीं बढ़ रहा? कटे हुए सर से आवाज़ आई सज्जाद
میری سینے پہ سونے والی کہیں گر گئی ہے۔ جناب زینب نے جب یہ سنا نا، بھائی کی وصیت تھی بہن میری امانت سے خبردار رہنا، بہن نے اپنے آپ کو اونٹ کی پشت سے گرایا تاکہ سکینہ کو تلاش کرنے کے لیے جائے۔ شمر نیزہ ہاتھ میں لے کے آگے بڑھ کے کہتا ہے زینب بچی کو تلاش کرنے تو نہیں میں جاؤں گا۔ ہاتھ میں ایک نیزہ لیا۔ رونے والی مائیں بہنیں مجھے نہیں پتا رباب کے دل پہ کیا گزرے، جتنی مائیں بیٹھی ہے نا، ایک نیزہ لہراتا ہوا آگے بڑھا۔ راستے میں کالا کپڑا پڑا تھا، اتنی زور سے نیزہ مارا کہ ایک بچی تڑپ کے زمین پہ بیٹھ گئی۔ شمر نے پوچھا بچی بتا تیرا نام کیا ہے؟ تماچوں سے اتنی ڈری تھی، چھوٹے چھوٹے ہاتھ گال پہ رکھے کہتی شمر وعدہ کر نام بتاؤں تو تماچے نہیں مارے گا۔ شمر کہتا ہے وعدہ کرتا ہوں تماچے نہیں ماروں گا۔ جیسے کہا نا بچی نے انا سکینہ بنت الحسین، جو نیزہ لے کے آیا ہے نا، پشت پہ اتنے نیزے مارے، اتنے نیزے مارے، بچی کی پشت زخمی ہو گئی۔ رونے والی مائیں بہنیں، پشت سے خون جاری ہوا، نیزہ مارتا ہوا وہاں پہ لے کے آیا جس نیزے پر کٹا ہوا سر حسین بلند تھا۔ اب آپ جانے اور وقت کا امام جانے، مجھے نہیں پتا کٹے ہوئے سر کو دیکھ کے بچی نے کیا کہا ہوگا۔ بابا ذرا دیکھ، لاڈوں کی پلی، نازوں کی پلی، تیری بچی کانٹوں پہ چل رہی ہے۔ جیسے ہی پشت پہ نیزہ مارتا ہوا ظالم لے کے آیا نا، بچی کو اس نیزے کے قریب لا کے کھڑا کیا جس نیزے پر بابا کا کٹا ہوا سر تھا۔ جیسے ہی بچی کو لے کے آیا نا، زینب کبریٰ نے چوتھے امام کی طرف دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا بیٹا سجاد آج سکینہ کو شدید بخار کا عالم ہے۔ میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا۔ ہمارے بچے جب بیمار ہو جاتے ہیں نا، چاہے جتنے بڑے ہو ماں کی گود نہیں چھوڑتے ہیں۔ کوئی رباب کے دل سے پوچھے سکینہ کو شدید بخار کا عالم ہے، ہائے بچی اونٹ کی پشت سے گری ہے اور شمر پشت پہ نیزے مار رہا ہے۔ بس آخری جملے، خدا کسی غم میں نہ رلائے اجرکم اللہ۔ جنت البقیع سے ایک بیوی آئی ہے آپ کو دعائیں دینے کے لیے، روتے جائیے، بی بی کی دعا لینے کا وقت ہے۔ زینب کبریٰ نے کہا شمر یہ بچی ابھی بہت چھوٹی ہے، میں نے کہا تھا نا نہ بیٹھ پائے گی، یہ گر جائے گی، یا میری گود میں بٹھا یا عمر رباب کی گود میں۔ جب 2 مرتبہ گری نا، شمر کہتا ہے زینب اب بچی نہیں گرے گی، میں نے انتظام کر دیا ہے، میں نے سوچا شاید رحم آ گیا اور ماری لے کے آیا ہو۔ نہیں عزیزو، ایک رسی لے کے آیا، بچی کو کس کے اونٹ کی پشت پہ لٹا کے باندھ دیا۔ اونٹ دوڑتا تھا، بچی کا سینہ زخمی ہوتا تھا، پورا اونٹ خون سے تربتر ہوتا تھا۔ ہائے حسین کی لاڈلی، نازوں کی پلی، بابا کے سینے پر سونے والی۔ معبود ان بہتے ہوئے آنسوؤں کے صدقے میں حاضرین مجلس، خصوصاً بانی مجلس، ان کی ہر ایک دلی جائز تمناؤں کو پورا فرما۔ معبود ہمارے آنسوؤں کو ہماری نجات کا ذریعہ قرار دے۔ محمد اور آل محمد کے صدقے میں پروردگارہ کورونا کی اس وبا کو نیست و نابود فرما۔ بے حق کے بیمار مدینہ، بے حق کے بیمار کربلا، معبود تمام بیماروں کو شفاء کاملہ اور عاجلہ عنایت فرما۔ محمد اور آل محمد کے صدقے میں معبود قبر کی پہلی رات بی بی زہرا کی زیارت، عالم برزخ میں شہزادی سے بار بار ملاقات، محشر کے میدان میں بی بی کی شفاعت اور جنت میں بی بی کا پڑوسی بننا ہم سب کو نصیب فرما۔ محمد اور آل محمد کے صدقے میں تمام مرحومین کی مغفرت فرما، انہیں جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔